हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके लिए अपनी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर की ट्रेडिंग को ब्रेक डाउन करूंगा, एक रीकैप करूंगा एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइस व्हाट ट्रेड्स डिड आई टेक, डिड आई एंड अप ग्रीन, डिड आई एंड अप रेड, एंड आई विल शो you my profit and loss with timings, with execution and everything. So make sure you stick till the end of the video. It's going to be very informative and you guys are going to learn a lot. So let's start with the video. As you can see on the screen, मैंने अपने console पे P&L statement खोला हुआ है and I'm going to select the dates from 22nd of December to 28th of December. This is the last week of December, right? And as you can see, I have realized profit of 655 rupees, out of which I've paid 500 rupees in commissions and charges. So I ended up net 150 rupees in the profit. And you can see that I've traded for only 2 days, right? So Monday and Tuesday. So we are going to dive into each and every single day and I'm going to show you the executions on these specific days. So let's start with Monday. तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि मंडे की सारी एग्जीक्यूशंस खुल चुकी है। जो मैंने सबसे पहला ट्रेड लिया था वो मैंने लिया है 922 पे, विच वाज 23,800 के कॉल्स एंड आई बॉट 100 क्वांटिटी एज यू कैन सी। तो ये 3 एग्जीक्यूशंस की फॉर्म में आपको दिखा रहा है 25, 25 एंड देन 50। ये सारा का सारा एक ही ट्रेड है। आप टाइम भी मैच कर सकते हैं, 922, 922 एंड 922। आई डोंट नो, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद Zerodha and console. They kind of do that sometimes. So 100 क्वांटिटी से मैं एक ट्रेड लेता हूँ एंड यू कैन सी माई एंट्री प्राइस वॉज 136.85 and entry price was 136.85. So we are on the executions page of console and we can see that the first trade that I took for the day was at 922 and which were 23,800 calls. So let's dive into the chart and I'm going to show you how do I mark my levels, how do I study the chart from my own point of view, and I hope you guys will understand my thought process before I start to take any of the trades. So here we are. This is the weekly chart and we know that the first thing we have to do on the higher time frame is that mark the most important levels. We see that this is the all-time highs. This is a very strong weekly support at 23,296, almost around 23,300. Last time हम देख सकते हैं कि 23,300 के लेवल से मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस लिया था and we see that market started to go higher and eventually it started to lose momentum once again. This is the weekly chart. So whatever, every single candle here represents time frame of one single week. So we know that last week 23,300 के लेवल से मार्केट ने बाउंस लिया था. As we started to rise, मार्केट ने 25,000 के अराउंड आके अपना मोमेंटम लूज करना शुरू कर दिया एंड वी सी दैट जो 9th दिसंबर वाली वीक की कैंडल की क्लोजिंग है, इट इज़ नॉट अबव द प्रीवियस कैंडल्स हाई, यानी कि 9th दिसंबर वाली वीक के अंदर मार्केट ने प्रीवियस वीक के हाईज या लोज को नहीं ब्रेक किया, उसी रेंज के अंदर रही एंड द बायर्स कुड नॉट टेक द प्राइस एनी हायर, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ मोमेंटम लॉस. सो इन द नेक्स्ट वीक वी कैन सी दैट बायर्स कुड नॉट डू एनीथिंग एंड द सेलर्स स्टार्टेड टू स्टेप इन, यानी कि जिन लोगों ने भी नीचे से बाइंग करनी शुरू करी थी, दे डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू टेक द प्राइस एनी हायर. सो व्हाट डिड दे स्टार्ट डूइंग इज started taking off their positions. मतलब उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी शुरू करी. न्यू शॉर्ट इंटरेस्ट पैदा हुआ वहाँ पे, जिसके कारण मार्केट का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया. वंस द वीक क्लोज वी सी दैट 16th वीक ये वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक किया है एंड इट हैज़ क्लोज फार बियॉन्ड द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल, which is a very, very, very strong sign of the downward continuation of the downtrend. So coming into this week, what is my thought process? सबसे पहली चीज़ जो मैंने मंडे को उठ के किया है, अपना प्री मार्केट गेम प्लान लिखा है एंड इन माई गेम प्लान आई हैव रिटन कि I can see that the bearish trend has the highest possibility to continue. So the first thing that I would want to look is intraday structure में मेरे को सबसे अच्छी short की entry कहाँ पे मिल सकती है. So the first thing here, let's stop the video for a second and I want you guys to understand कि आप लोगों के पास एक trading journal होना बहुत ज़रूरी है. As you can see, I have my own copy with me where I write down every single thought process I have in my mind. जो भी मेरे दिमाग में चीज़ें आती है मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ and then I formulate a plan going into the day कि किस लेवल्स पे मैंने कौन से ट्रेड्स लेने हैं एंड उनके पीछे का लॉजिक मेरे अकॉर्डिंग क्या है, राइट. एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी ये चीज़ को जितना ज़्यादा कर सकते हैं रेगुलरली, उतना रेगुलरली इस चीज़ को फॉलो किया करें. तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं या मेरी शॉर्ट वीडियोस अगर आपने देखी हुई हैं तो उसमें आपको याद होगा अच्छे से कि मैं सबसे पहली चीज़ लेवल्स ड्रॉ करने के लिए जो सिखाता हूँ वो यही है, टॉप डाउन एनालिसिस.
सो टॉप डाउन एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है कि वी स्टार्ट फ्रॉम दी हायर टाइम फ्रेम, यानी कि मंथली वीकली चार्ट से शुरू करते हैं एंड वी गो डाउन स्टेप बाय स्टेप। वीकली के बाद हम डेली पे आते हैं, डेली के बाद हम 4 आवर पे आते हैं, देन फ्रॉम 4 आवर वी गो डाउन इनटू द इंट्रा डे टाइम फ्रेम्स, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम वी कैन सी, सबसे पहली चीज़ मैंने 2 लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए हैं, जो कि हमारा ऑल टाइम हाइज है 26,400 के पास, एंड हमारा वीकली का बाउंस लेने वाला लेवल है जहां से मार्केट ने बाउंस लिया था ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम विच इज़ अराउंड 23,300। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी रियलाइज इज मार्केट ने एक न्यू डिमांड जोन क्रिएट किया है, और अगर मैं ये डिमांड जोन ड्रॉ करना चाहूँ, इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। सो वी नो दैट दिस ब्राउन शेडेड एरिया इज द न्यू वीकली डिमांड, राइट। What do we see? वीकली डिमांड से मार्केट ने बाउंस लेना शुरू किया है। वी सी दैट बायर्स कीप स्टेपिंग इन, वी गेट अ मैसिव गैप अप द नेक्स्ट वीक एंड देन वी सी मैसिव बाइंग, एंड व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे आके हम देख सकते हैं कि ये एक हैमर कैंडल है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह इसका नाम देते हैं। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, बट मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि आप नाम याद करने की बजाय उसके पीछे का जो अंडरलाइंग लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करें, राइट। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स जो हैं इस प्राइस पॉइंट से मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा पाए, यानी कि बायर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे आते आते खत्म हो गई थी। सो वी सी दैट द फॉलोइंग वीक बायर्स जो है सारा बाइंग मोमेंटम फेल हो चुका है और अब सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो रहा है। सो वी सी दैट इस लेवल के अराउंड मोमेंटम फेल हो चुका है, बायर्स में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बायर्स में बिल्कुल पोटेंशियल नहीं है मार्केट के प्राइस को ऊपर ड्राइव करने के लिए। सो व्हाट हैपेंस इज मार्केट स्टार्ट्स डंपिंग। सो द नेक्स्ट वीक वी सी दैट वी गेट अ ह्यूज मैसिव रेड कैंडल, यानी कि एक्सट्रीम सेलिंग हुई है, एंड दिस कैंडल हैज ब्रोकन द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल, यानी कि पिछले कैंडल के लो को ब्रेक किया, एंड इट ऑल्सो क्लोज बिलो दैट लो विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ ए बेरिश continuation. So coming into this week, जिस week का हम recap कर रहे हैं, the last week of December, the first thing that I have in my game plan is that I want to see a continuation to the downside. इस हफ्ते में मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे जो सेलर्स हैं वो स्टेप इन करते हैं और मार्केट को और ज़्यादा नीचे लेके जा सकते हैं। So the first thing that I am expecting from the market is a minor pullback. Coming into the daily chart, what do we see? Where do we have our critical levels on the daily chart? एक लेवल यहाँ पे बनता है and then we have another level over here, right? So weekly chart पे important levels draw करने के बाद हमारा next step है हम daily time frame पे same चीज़ repeat करेंगे. We have to draw our critical levels on the daily time frame as well. So stepping into the daily time frame, what do we see? We see that market ने all time highs से नीचे आना शुरू किया है. We see a minor consolidation or a pullback, then we see another dump, and then we see another consolidation, and we see another dump. This is the low where the market took a bounce from, and we see that market में buyers ने step in करना शुरू किया है. We see that एक एरिया पे आके मार्केट कंसोलिडेट करती है, बायर्स को स्टॉप आउट करवाती है, देन वी सी अनदर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड, राइट। सो दिस इज अ की लोअर हाई, यानी कि जब पहले का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, उस डाउन ट्रेंड में वी नो दैट मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती है. So this point we can easily see that it is kind of a lower high for us, and we see that जब मार्केट ने 23,300 के लेवल से बाउंस बैक किया है, मार्केट ने उस लोअर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया है. So according to few concepts in the stock market, we can understand from this point is that the market is trying to change the structure. यानी कि मार्केट पहले bearish structure में थी, अब मार्केट कोशिश कर रही है बुलिश स्ट्रक्चर में आने की. सो वी कैन टेक दिस एज ए साइन ऑफ ए चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, राइट. इस लोअर हाई को ब्रेक करके एक न्यू मार्केट ने हायर हाई बनाया है, एंड वी सी दैट इस कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट के बायर्स ने मोमेंटम लूज कर दिया है, एंड उसके बाद वी कैन सी सेलर स्टार्टेड टू स्टेप इन. सारे बायर्स डर चुके थे, उन्होंने अपने स्टॉप्स हिट करवाए, उन्होंने अपने प्रॉफिट टेकिंग करी, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर बिल्डिंग अप, जिसके कारण मार्केट ने दोबारा डंप देना शुरू किया. सो कमिंग इनटू द डेली टाइम फ्रेम, एज आई वाज सेइंग, मेरा मंडे के लिए मेरा गेम प्लान क्या था कि आई वांट टू सी अ माइनर पुल बैक और आई वांट टू सी अ कंटिन्यूएशन राइट ऑन द ओपन. अगर मेरे को ओपनिंग के फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर मेरे को देखने को मिलता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है, एंड with that strong selling I can see that price is also moving down, then I want to take a short entry right at the open. Let's go back to the day of Monday 23rd December. यहाँ से हम प्ले बैक शुरू करते हैं. So what do we see? यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है. वीकली चार्ट पे we can see that मार्केट
रेड कैंडल क्लोज हुई है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, उसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर गोइंग ऑन, राइट। गोइंग इनटू द डेली टाइम फ्रेम, आई वांट टू सी अ पुल बैक टू 24,000 का लेवल, या तो यहाँ तक मेरे को एक पुल बैक चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने क्रिटिकल लेवल्स ड्रॉ करने के बाद हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे सेम चीज रिपीट करनी है, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे वी कैन सी दैट दिस लेवल इज एन इंपॉर्टेंट लेवल 23,835 का, विच इज ए स्विंग लो पुराने मोमेंटम का। जब बाइंग मोमेंटम चल रहा था, मार्केट ने जब 23,300 के लेवल से बाउंस लिया था, उस टाइम पे एक मार्केट ने 4 आवर पे हायर लो फॉर्म किया है। गोइंग इनटू द इंट्राडे टाइम फ्रेम, सो व्हाट डू आई डू इज वीकली डेली 4 आवर के बाद आई स्ट्रेट जंप टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, जहां पे मैं अपने इंट्राडे लेवल्स को ड्रॉ करता हूं। So there are 4 important intraday levels that I usually mark on my chart. So those 4 levels are the opening print for the day, closing print of the previous day, high and low of the previous day, right? So I'm going to draw all these levels right in front of you. We can see जो हमारे previous day का high है वो यहाँ पे आएगा, similarly हमारे previous day का low यहाँ पे आएगा, and then we have the closing print over here. So for better I'll just write it down here. So this is the close yesterday, this is the low yesterday, and then we have the high yesterday. So I'm going to play the session now. So we can see, so the market has opened around here 23,721. So the first thing I do is mark the opening print. I know this is the opening print of the day, right? So I have my key important levels on the time frame, and then I have my intraday levels as well. So now I can formulate a very good plan where I want to enter any trades or where do I want to take the exits, right? ये 5 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, and we see that there's a strong बाइंग गोइंग ऑन। सो नीचे टेबल में आपके पास 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है वॉल्यूम, सेकंड चीज़ है बाय वॉल्यूम, देन सेल वॉल्यूम, एंड देन डेल्टा। डेल्टा इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि अगर डेल्टा आपका ग्रीन है दैट मीन्स देयर वर मोर बायर्स देन देयर वर सेलर्स, एंड इफ डेल्टा इज रेड दैट मीन्स देयर वर मोर सेलर्स एंड लेस बायर्स। So what do we see right on the open? First 5 minute 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, as I've said in other videos as well. If you are a amateur or a beginner in trading, do not go into the market and take trades for the first 5-10 minutes. 9:15 से 9:20 9:25 तक please wait, let the price action form and then execute any of the ideas that you have in your mind. Why do I say this? Because first 5 minutes are extremely volatile, यानी कि so make sure you guys are aware of this thing. So let's get back to the chart. 9:15 पे market open हुई and I can see there is a lot of volume. 4,86,000 की volume पहले 5 मिनट में trade हुई है. For your context and from my experience, I have learned that अगर volume 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा है, that volume is good for you to trade. यानी कि market में enough volatility होगी कि आपके contracts की movement अच्छी होगी, आपके लिए favorable होगी. So I only take trades on the days जहाँ पे first 5 मिनट की वॉल्यूम एटलीस्ट 1,50,000 से ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम 1,50,000 से कम है और कैंडल्स जो है वो बहुत छोटे साइज़ की हैं, आई डू नॉट लाइक टू टेक एनी ट्रेड्स ऑन दोज डेज। ऐसा नहीं ज़रूरी होता कि अगर वॉल्यूम कम है तो उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगी, बट ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट की वॉल्यूम ही डिक्टेट कर देती है कि क्या उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है या नहीं। सो आई सी दैट मार्केट गैप अप ओपन हुई है, देयर इज अ माइनर गैप अप। 23,650 पे मार्केट क्लोज हुई थी और 23,720 पे मार्केट ओपन हुई है, यानी कि 70-80 पॉइंट का गैप अप हुआ है, एंड आई सी दैट देयर इज एक्सट्रीम सेलिंग कमिंग इनटू द मार्केट राइट एट ओपन। सो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट? सबसे पहली चीज़ जो मैं ये चाहता हूँ, मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड लेना चाहता हूँ, यानी कि द फर्स्ट ट्रेड दैट आई टुक वाज एट 9:22, यानी कि जब 9:20 वाली कैंडल ओपन हुई है उसने माइनर पुल बैक लिया है। आई टुक कॉल्स। व्हाई डिड आई टेक कॉल्स? बिकॉज आई यूज दिस इंडिकेटर कॉल्ड VWAP. VWAP इज बेसिकली एन इंडिकेटर विच शोज यू द क्यूमुलेटिव डेटा, यानी कि एवरेज डेटा ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस। वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशनशिप को कंबाइन करके इन दोनों की वैल्यूज को VWAP आपको एक प्राइस देता है। सो होपफुली गाइज आपको मेरा प्री मार्केट गेम प्लान समझ आ गया होगा। वीकली चार्ट पे वी नो दैट बुलिश मोमेंटम खत्म हो गया था, देन वी हैव अनदर बिग रेड कैंडल जिसने हमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी है कि वी नीड टू लुक फॉर शॉर्ट एंट्रीज दिस वीक बिकॉज we might get a continuation to the downside, right? Going into the daily chart, we know that एक बहुत critical level 23,850 के पास 840 के पास है, जहां तक मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है मार्केट इस वीक में एक पुल बैक ले and then it starts to dump again, right?